So it is also quite similar to your code trailing जो हमने किया था. ठीक है. एंड इसकी एक एप्लीकेशन और है जो कि अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे. That is the decoding of convolution codes. So this Viterbi tree is also entirely based on your state table. So first step of course would be to construct the state table. अगर आपको ये Viterbi tree या code tree पूछा जाता है, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स जब हम डिकोडिंग करेंगे, सो डिकोडिंग में तो ये आपको बनाना मैंडेटरी है. ऑलराइट, so let me just explain to you how you have to construct this tree. It is very simple, quite similar to the previous code trees that we considered, but थोड़ा सा different है, so just pay proper attention. तो इसमें भी हम लोग again सारी states लेंगे A, B, C and D, right? In the same way. And what are we going to do? We are going to mark points like this. ठीक है. So A B C D हमारी states है, if you remember, and हमने यहाँ पर points mark कर दिए. ठीक है. अब हम one by one what we are going to do is we will check the state changes for every state. जैसे पहले हम किसको चेक करेंगे, A को, फिर B को, C को और D को, और every step पे हम वो दिखाते रहेंगे. So for instance, अगर मैं A की बात करूं, so I am going to draw another set of points here. ठीक है. So if I go back to the state diagram, मेरा जो A के लिए है that is this one, A and A, जिसमें प्रेजेंट स्टेट A है और नेक्स्ट स्टेट A से कुछ और हम जंप कर रहे हैं. सो इफ यू कैन सी हियर, जो मेरा पहला वाला है उसमें प्रेजेंट स्टेट A है एंड नेक्स्ट स्टेट अगेन A है. वेयर एज माई इनपुट हमारा, इफ यू रिमेंबर, दिस इज M0. ठीक है, बिकॉज इनपुट हमारा M0 बिट होता था, M1 M2 हमारे स्टेट्स होते थे एंड X1 X2 हमारा आउटपुट था. राइट. सो यहाँ पर क्या है, बेस्ड ऑन द इनपुट 0 our state is changing from A to A only. It's not actually jumping to another state, it's staying there with the output 0 0. So what you can do here is simply जो A का पॉइंट है आप ऐसे इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं and you can show it like this. That means input is 0 and output is 0 0. All right. Now if I talk about the next input with respect to A state only, तो मेरा जो ये वाला पॉइंट है, this point, यहाँ पर स्टेट चेंज क्या हो रहा है, A to C, and the input is 1 here. So how am I going to represent it? Again I will represent it like this, and I will write the input 1 and output is 1 1. Right. So this is how you are going to specify your state changes in terms of this tree. ठीक है. अब A का जब state change हो गया, then to show the B state changes, again you have to draw another set of points, something like this. ठीक है. अब बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, जैसे हम लोग जितने भी प्रीवियस किए थे उसमें एक स्टेट का कंप्लीट करने के बाद या जो भी हम दिखा रहे हैं, वी डोंट बॉदर अबाउट दैट अगेन. बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें जो प्रीवियस हमने दिखाया था उसको भी नेक्स्ट में दिखाना पड़ेगा. सो जो हमने ए के चेंजेस इन फर्स्ट 2 सेट ऑफ पॉइंट्स में दिखाए, फर्स्ट 2 कॉलम्स जो हमारा यहाँ पर है, दिस जो हमने फर्स्ट 2 कॉलम्स में ए के स्टेट चेंजेस दिखाए, वो हम नेक्स्ट कॉलम में भी दिखाएंगे. ऑलराइट. सो
it will be something like this. Again A, क्योंकि सेम है बिल्कुल, and A to C 1/1, बिल्कुल सेम. Now we are going to also check the states of B. तो अगर मैं B की बात करूं, so if you see B, you have B here and here, right? अगेन अगर आप देख रहे हो तो पहले वाले में B to A चेंज हो रहा है विद इनपुट 0 एंड सेकेंड वाले में B to C चेंज हो रहा है विद इनपुट 1. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इन द ट्री अगेन. तो फर्स्ट वाले में B to A है, इनपुट 0 एंड आउटपुट इज 1 1. सो यू कैन चेक हियर इस वाले रो में. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो हियर. B to A, इनपुट इज 0 एंड आउटपुट इज 1 1. नेक्स्ट जो मेरा रो है दैट इज दिस. B to C जा रहा है विद इनपुट 1 एंड आउटपुट 0 0. सो B to C with input 1 and output 0 0. Right? So ये एक tree type हमारा बन रहा है. That is why we called it as a code tree or a Viterbi tree. ठीक है? Now A और B दोनों हो गए. Again we are going to construct another set of points corresponding to the states A, B, C, D. And again we are going to repeat the same process. Same process in the sense जैसे हमने A और B का represent किया है, मैं फिर से यहाँ पर A और B को represent करूँगा जो previous states में कर चुका हूँ. So something like this. A to C मेरा ये था 1/11. एरो बना देता हूँ जिससे मुझे पता रहेगा कि ये वाला था. एंड B का था 0/11 and then B का C था 1/00. All right. Now again A and B have been represented. अब मुझे किसको represent करना है? C को. ठीक है. So C के लिए मेरे पास जो available है that is this one and this one. मैंने आपको पहले भी बताया था. It is entirely up to you how you want to construct the state table. आप इसी ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो जैसे हमने यहाँ पर किए, और यू कैन टेक ऑल द प्रेजेंट स्टेट्स टुगेदर. जैसे आप 0 0 M1 M2 आपने ले लिया और फिर आपने एक 0 ले लिया और आपने एक 1 ले लिया, वो आप एक साथ भी दिखा सकते हो. तो स्टेट टेबल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कैसे बनाना चाह रहे हो. जैसे बनाओगे इट्स फाइन, बट यस ऑल द एंट्रीज शुड बी कवर्ड. ठीक है. तो हम लोग C पे काम कर रहे हैं. C का जो पहला एंट्री है this one, so that is from C to B. Input is 0 and output is 1 0. So C ये है मेरा. C to B, input is 0, output is 1 0. So input is 0, output is 1 0. And the next entry ये वाली जो है मेरी that is C to D. Input is 1 and output is 0 1. So C to D, input is 1, output is 0 1. Right? So C का भी आपका हो गया. Now what we are going to do? We are going to again do for D, जो हमारी लास्ट डेटा बच रही है. So again we'll follow the same process. A, B, C का आप सारा पहले यहाँ पर दिखाओगे. ठीक है. So again मैं A का दिखा रहा हूँ यहाँ पर 0/0 0 और A का आपका यहाँ पर है 1/11. Then if you see B is like this 0/11 and B is like this also 1/0 0. ठीक है. एंड देन C का भी मुझे दिखाना है फिर से. सो C का मेरे पास यहाँ पर है 0/10 एंड देन C का एक D यहाँ पर है 1/0. ठीक है. थोड़ा सा ये मेसी लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, बट करना पड़ेगा. नथिंग कैन बी डन. दिस इज हाउ दी
algorithm for this tree construction works. ठीक है, अब सिर्फ D का बच रहा है, तो अगेन यू कैन गो टू द टेबल एंड चेक द एंट्रीज ऑफ D. एक एंट्री ये है D2B विद आउटपुट 01. तो मेरा D यहाँ पर है एंड यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा कर देता हूँ. D2B with output, input is 0 and output is 0 1. ठीक है, एंड लास्ट मेरा क्या है, इट इज D2D, इनपुट 1 एंड आउटपुट 1 0. तो D2D मेरा यही रह गया, तो 1 and slash 1 0. Alright, so this is how you construct your Viterbi tree or code tree. तो यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पेस कम लिया है. इफ़ यू वांट थोड़ा अगर आप और क्लीन इसको करना चाहते हो तो आप काफ़ी अपने नोटबुक पे जैसे भी आप बनाओ, टेक सम गुड गैप बिटवीन ऑल द पॉइंट्स. तो उससे आपका थोड़ा क्लीन भी रहेगा एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ द लाइंस ऑल्सो ईजिली. So the only points that you have to remember are हमारी जो स्टेट्स हैं हम उनको सिंपली एक कॉलम में लिखेंगे एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ 4 पॉइंट्स. जितने भी स्टेट्स हैं उतने पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे इन 1 कॉलम. ठीक है, फिर जो हमारा सेकेंड कॉलम है उसमें भी हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे एंड वी विल स्टार्ट मार्किंग द स्टेट चेंजेस फॉर ईच स्टेट. तो पहले हमने A का मार्क किया इन द फर्स्ट 2 कॉलम्स. फिर जब थर्ड कॉलम आ गया तो हमने A का फिर से मार्क किया एंड B का मार्क किया. जब फोर्थ कॉलम आ गया यहाँ पर तो हमने A B C तीनों दिखाया उसमें. एंड जब फाइनल मेरा ये कॉलम आया देन आई हैव शोन A B C एज वेल एज D. राइट, सो दिस इज हाउ you construct a code tree or a Viterbi tree. So this question is also asked a lot in examinations.